So Kepler's laws are like this. We know that law number 1, that is, all the planets revolve in which path? Circular na hyperbolic? Na ki parabolic na ki elliptical? Very good. Elliptical path. So that is one. Keeping the sun at one of its foci. So if this is a planet P and this is sun S, this is the motion. That was first sum. First sum से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. आता है सेकंड से. Second sum is the aerial velocity. Aerial velocity of a planet is constant, and that is given by L by 2m. Now, what is this aerial velocity? This dA by dt is called, you may write, aerial velocity. This aerial velocity dA by dt, area बनाने का rate. Suppose the planet P was here, P1, and it moved to P2, like this. The planet moved from P1 to P2 with respect to sun. इसको मैं dotted line कर दे रहा हूँ. This is a dotted line. Okay. With respect to sun. So this has been the area described or swept by the planet. So this is the area. Let us call it dA. It's a small area, dA. And the time taken to move from P1 to P2, this time taken has been dt, a small time dt. So the rate at which the area is being swept is dA by dt, this thing. And pictorial view, देखो picture से better समझ में आता है. And the other things are on the right hand side. L is angular momentum of the planet. Angular momentum. Angular momentum of the planet, capital L. And m is obviously mass of the planet. So write these things. Kepler's laws. This is the second law. Now L is angular momentum, m is the mass. Angular momentum and torque has a definite relation. Torque is rate of change of angular momentum. Or you can say ddt of L. You can even put a vector sign. That means if no torque is applied on a planet, if no torque is applied on a planet, भाई planet के ऊपर torque कौन देगा? Hercules बाहर से आके ऐसे घुमा दिया कि यार तू slow हो जा रहा है, ले घूम जा. It cannot be possible. That's why we assume that torque acting on a planet is zero, and if that is zero, now you can well understand differentiation of which quantity is zero. Constant. Very good. So angular momentum of a planet is considered constant. So look at the right hand side of the equation. L, constant angular momentum. Mass, constant for a planet. So dA by dt is also a constant. I1 omega 1, I omega is angular momentum. Suppose planet घूमते घूमते कभी उसका moment of inertia I1 और angular momentum omega 1 हुआ, equals to I2 omega 2. ये उतना काम शायद नहीं आएगा unless it is a direct MCQ कि कौन सा relation for a planet orbiting around sun is correct. तो उसमें से किए होगा for two positions 1 and 2 from picture. But it has got more application in writing angular momentum. Remember this, angular momentum मैं बोला था या तो I ओमेगा बैठाना या तो क्या बैठाना,
MVR. So it has got another application, MV1 R1, MV2 R2. M तो M ही रहेगा ना. Why should we write M1 and M2? We should not. So M cancel. What do we understand from that? Is that मैं दूसरा कलर से इसको ड्रॉ करूंगा. इच्छा है वह मेरा दूसरा कलर. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट. कैसे कि सपोज अ प्लैनेट वॉज हियर एट अ पोजिशन से P सफिक्स 3 and suppose the planet is here, say P planet 4. Here there का क्या मान है भाई? Here there का ये मान है, what I mean to say, P3 is largest distance of that planet from sun, while P4 is very small distance. That means planet घूमते घूमते sun का बहुत पास आ गया है P4. But this figure is becoming clumsy if I draw this here. तो मैं ना दूसरा जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं. कैसे? Let us go to another page. Remember this angular momentum constant. We are doing this topic now. Angular momentum constant that gave us that thing. What? If this is sun and suppose a planet is moving in this elliptical path. Suppose a planet is at P1 position and now it is at P2 position. So it moved from P1 to P2. ड्रॉ दिस. मैं जैसे खराब करके ड्रॉ किया वैसे ही खराब करके ड्रॉ करो. दिस इज इट्स लोकस elliptical path. Now what happens कि if this moves like that, then the velocity, linear velocity is given by straight tangent at P1 and at P2. These are V1 and V2. अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि V1 ग्रेटर देन V2 है कि V1 लेस देन V2 है कि V1 इक्वल टू V2 है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट. ये तीनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? V2 greater than V1. V2 greater than V1 is the right answer. But why? So because right now we derived that V1 R1 is equal to is constant. VR is constant. Yes. Angular momentum MVR is constant. तो MM काट दिया था मैं. V1 R1 इक्वल्स टू V2 R2. मतलब क्या है इसका वो समझना है. दैट इज इफ R2 सेकेंड केस में डिस्टेंस छोटा पड़ गया देन R1. हाँ छोटा पड़ गया. वो तो लिखा नहीं है. लिखा नहीं है तो क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फिगर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है. R2 छोटा है देन R1. देन V2 उल्टा होगा ना. प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है. इसको यू कैन रिमेंबर दिस एज दिस ऑल्सो. वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट. ये अनदर कंसिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ केपलर्स. सो कैन वी से closer the planet is, planet closer का मतलब क्या हुआ? ये S लिखा हूं मैं, प्लीज इसको S पढ़ना. अच्छा छोड़ो, ये बहुत खराब हो गया. closer the planet is मतलब R छोटा पड़ जाएगा. closer the planet is more is the velocity of the planet. Velocity माना वैल्यू बता रहा हूं, स्पीड. ये हुआ आइडिया पार्ट. बट मैं फिर से बता रहा हूं, अभी क्लास 11 है, समझ में नहीं आ रहा है. इसी साल तुम लोग 12 हो जाओगे. The toughest thing is not understanding physics. It would be remembering all these things that you have understood.
उसलिए मैं बोल रहा हूं इतना याद रखना वाला आइडिया को छोड़ दो, कंसेप्ट पार्ट को याद रखो। माने कंसेप्ट इज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट मींस एम वी आर कांस्टेंट, दैट इज एम तो कांस्टेंट होगा ही होगा, वी आर कांस्टेंट। सो वी आर कांस्टेंट माने लेस द डिस्टेंस आर, दैट मींस प्लैनेट पास आ जाएगा। पिक्चर याद रहता है, दैट्स व्हाई ड्रॉ अ पिक्चर कि प्लैनेट जितना क्लोज आ जाएगा सन का, उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा। मोर इज द वेलोसिटी। वाह, तो ठीक है, दैट वाज सेकेंड लॉ का कंसिक्वेंस। नाउ इसका ऊपर बेस करके भी आइडिया आएगा। थर्ड लॉ का थोड़ा सीख लेते हैं, थर्ड लॉ का क्या कंसिक्वेंसेस होगा। ऐसे थर्ड लॉ तो वी नो, केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो मैं तो ये बोलता हूं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू अगर आर क्यूब है तो बताओ तो टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कुलर, हाइपरबोला? Very good, straight line, because this total quantity has been plotted along y axis. t ने ही t स्क्वायर ही प्लॉट कर दिए, राइट साइड में r ने ही r क्यूब को ही प्लॉट कर दिए। तब तो these two quantities are proportional directly, and we know if two quantities are directly proportional, the graph is straight line passing through the origin. लेकिन अगर t और r का ही ग्राफ पूछे तो इट वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि ऊपर से जाएगा कि थोड़ा नीचे से जाएगा, कि ये ग्राफ ऐसा होगा 1 2 3 4, which one correct? 1 लॉजिक की है। व्हाट इज द लॉजिक? व्हाई डू यू से दैट? Very good, very good. That was the idea. Very good. Because t square proportional to r cube, now t proportional to r to the power 3/2. ये भी कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है। Why? Because you will see, इसको डायरेक्ट तुम लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ लास्ट ईयर ही जॉइंट में आया था, वेस्ट बंगाल जॉइंट लास्ट ईयर। तो एनीवे, तो मैं ये बता रहा हूँ। Now the thing that I have taught you earlier for graphs कि if A proportional to B, okay, इसका ग्राफ तो straight line passing through the origin होता है। But if A proportional to B square, B cube, B4, that means greater than 1 अगर हो जाता है पावर, A proportional to B to the power n, n का वैल्यू अगर greater than 1 होता है, माने 2, 3, 4, 4/3, 5/4, माने greater than 1, तो ग्राफ मूव्स अपवर्ड्स। इक्वल टू 1 ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जैसे यहां पे हुआ है। क्यों? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और अगर लेस देन 1 होता है टू दी पावर, जैसे कि ए प्रोपोर्शनल टू रूट बी, लास्ट दिन चर्चा हो रहा था, तो ए का साथ बी का रिलेशन रूट ओवर है। रूट ओवर माने बी टू दी पावर हाफ, हाफ इज लेस देन 1, ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ऐसा होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा लेकिन इस रेट से, नॉट 4 बट 3। कब होता है ऐसा? जब पावर लेस देन 1 होता है। एनीवे, सो ये सब साइड में रहने दो, इसको रहने दो, कभी तो काम आएगा एग्जाम हॉल में, कभी तो याद आ जाएगा कि हाँ सर बोले थे ऐसा होता है। इट विल हेल्प यू डेफिनेटली, ये सब रहने दो। एनीवे, सो हियर व्हाट वी सी दैट द राइट आंसर ऑफ द ग्राफ्स इज 1, द नेचर ऑफ द ग्राफ 1 is right because it has to be increasing. Why? Power is greater than 1, that is 3/2. Okay, t proportional to r. तो ये एक ग्राफ था t square proportional to r cube का। Otherwise, the meaning of t square proportional to r cube lies here. एक अप्लाई करके देखो तो ये एक r रेडियस का प्लैनेट है, इसका ऊपर दो दो सैटेलाइट घूम रहा है। ये सैटेलाइट है, इसका नाम S1 है। अनदर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, इसका नाम है S2।
ठीक है, जस्ट ड्रॉ दिस पिक्चर. ये एक प्लैनेट है. अब दोनों का हाइट दिया हुआ है. दोनों का हाइट दिया हुआ है. एक को मान लो 2.5 आर एंड दूसरा का मान लो कि 6 आर. आर माने रेडियस ऑफ आर्ट दिया हुआ है. दिस इज द पिक्चर. ये पिक्चर है तो देन तुमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ वन, S1 का टाइम पीरियड T1, टाइम पीरियड ऑफ 2, S2 का टाइम पीरियड T2. 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा. आई एम नॉट राइट नाउ प्रोवाइडिंग ऑप्शंस. बाकी इसको ट्राई करो. Which option will be correct? I mean, what would be the answer? वो बताओ. The clue part would be like this: T1 by T2, T square proportional to R cube. That means T1 by T2, R1 by R2, whole to the power 3/2. डायरेक्ट करो. देखो मैं बता ही दिया. अब सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है. R1 छोटा है, R2 ज्यादा है. √27/10. अच्छा, तो लेकिन ये तो ऐसा आना चाहिए. लेकिन आना तो ऐसा चाहिए. यस, आईआईटी में आया हुआ साम है. ऑलरेडी पुराना आईआईटी में आ चुका है, तो अभी प्रिपेयर इट फॉर मेंस एंड नीट. जो दिखता नहीं है पर होता है, जैसे दिन में चांद दिखता नहीं है पर होता है, वो चीज है. फोकस ऑन द लैंग्वेज, और कुछ नहीं. यहां पे धोखा खा गए. मैं बोला भी था हाइट्स और रेडियस सेम चीज नहीं है. आर स्टैंड्स फॉर रेडियस. देख रहे हो तो कहां पे हम लोग मिस्टेक करते हैं? बेसिक चीज में. व्हाट इज व्हाट? आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, तब जाके टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू लिख सकते हैं. पर यहां पे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है. ये बोला कि ये जो है ना, ये 2.5 आर है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 2.5 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ. अच्छा, तो वो अगर 2.5 आर है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ S1? भाई रेडियस ऑफ S1 तो ये है. ये रेडियस ऑफ S1. सो रेडियस निकालने के लिए व्हाट थिंग शुड वी डू इज ड्रॉ दिस. देखो ये है रेडियस R1. तो R1 कितना हो जाएगा? 2.5 आर, और उसका साथ ये R ऐड करके कितना हो जाएगा? सिमिलरली लैंग्वेज देखो. ऑल्टीट्यूड माना हाइट, सेकेंड प्लैनेट का कितना दिया? 6 आर. माने क्या कि सरफेस ऑफ अर्थ यहां से ये 6 आर है. ऑल्टीट्यूड माने फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, बट अर्थ इटसेल्फ हैज अ रेडियस कैपिटल आर. तो इसका रेडियस कितना हो गया? रेडियस ऑफ रोटेशन, ये टोटल कितना हो जाएगा? R प्लस 6, दैट इज 7R. तो ये पिक्चर से हम लोगों को we understand this thing that R1 2.5R plus R, R2 6R plus R. So R1 by R2 is nothing but half. So half to the power 3/2.
उसको मैं उल्टा करके 2 टू द पावर माइनस 3/2 लिख दिया. अदरवाइज यू मे ऑल्सो राइट इट एज हाफ टू द पावर 3/2. नाउ 2 टू द पावर 3/2 होता कितना है? √2 का होल क्यूब. दैट मीन्स √2 into √2 into √2, 2√2. So you may also write it as, मतलब ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा, हाँ, है ना, जो ऑप्शन में रहेगा. If the option is given like this form, then it is the answer. Otherwise, this form, then this is the answer. तो इससे क्या सीखे? We understood what r is. Small r माने radius and not altitude, height. ऐसा नहीं है, ठीक है. द थिंग्स आर नॉट टफ. दो चीजें चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज व्हाट, सेकंड प्रैक्टिस. और वो प्रैक्टिस के लिए, चलो बहुत हुआ थ्योरी सीखना, चलो स्टार्ट. कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर से आइडिया सिखाएंगे, बट ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी छुट्टी होगा. Two planets A and B revolve around Sun in a galaxy. The semi-major axes of A and B are 1 and 5 astronomical units. माने एक का वैल्यू 1 है, दूसरा का 5 है. सिंपल. If the period of revolution of A is 1 year, माने टाइम पीरियड दिया हुआ है A का 1 ईयर, तो पीरियड ऑफ B कितना है, टाइम पीरियड B का कितना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ झटाझट. लेकिन इसका आंसर 11.18 years আসছে. 11 years. ये तो t² proportional to r³, दैट मीन्स t2/t1 r2/r1 होल टू द पावर 3/2 होना है. अब r2 जो है वो है 5, r1 है 1 टू द पावर 3/2. बात वही हो गई कि ये टू दी पावर 3/2 आ गया, दैट मीन्स √5 होल क्यूब, √5 इंटू √5 इंटू √5. अब देखो √5 जो आया, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, इतना तो श्योर है. √4 से तो ज्यादा है, इसका आंसर ग्रेटर देन 10 आना चाहिए जस्ट. दैट इज 11 ईयर्स. समझ रहे हो? तो हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है. 11 ईयर्स. √5 is greater than 2 but less than 3. √5 तो आंसर ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15 आना चाहिए. कौन सा ऑप्शन है ये? ठीक है, लेट अस मूव. हो जाए तो मूव कुछ ही. चलो नेक्स्ट पार्ट ये है, अ कॉमेट ऑर्बिट्स अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट. Which of the following remains constant during the course of its motion? क्या कांस्टेंट रहता है ये ऑप्शंस में से? 5 ऑप्शन दिया हुआ है. लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. इसमें एक डाउट लग रहा है, एनर्जी क्यों नहीं बैलेंस होगा? व्हाई नॉट एनर्जी पार्ट? ठीक है, ये तो अभी सीखे थे, कंसिक्वेंस बोल के सीखे थे ना, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है सेकंड लॉ से. ओके, लेकिन व्हाई नॉट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज टोटल एनर्जी जो है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये एनर्जी का नाम क्या होता है? प्यार से इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाइंडिंग एनर्जी. ये कांस्टेंट होता है, बट अलग से काइनेटिक, अलग से पोटेंशियल, ये कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है, यहां पे तो अलग से दिया हुआ है. हाँ बोलो. सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों नहीं होता? एंगुलर वेलोसिटी ना, सॉरी वो वेलोसिटी को टिक कर दिया मैं. वेलोसिटी जा, रुको, वेलोसिटी नहीं होगा ये होगा एंगुलर मोमेंटम. यहां पे है ना, हाँ, ऑप्शन सी.
एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अब अभी तो देखे हम लोग वेलोसिटी v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2, क्लोजर द प्लैनेट इज मोर द वेलोसिटी। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बाकी इसका आइडिया समझ में आया, एनर्जी क्यों नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत ही रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है, वेरी रिसेंट एग्जाम। क्वेश्चन को देखो ठीक से। ये सब वी टेबी डीबी सेमी मेजर T1 T2 ये सब में खो मत जाना, पिक्चर को देखो, मैच कराओ इसको। एंड आई वुड सजेस्ट यू ड्रॉ द पिक्चर ऑन योर कॉपी। कॉपी में एक बार ड्रॉ करो, खुद से सोचो, अब कॉपी को देख के सोचो, टेक सम टाइम एंड फाइंड द आंसर। मैं आंसर नहीं भी बोलूं ना, विद इन 3 मिनट्स आई विल रिसीव आंसर्स। चलो ना, टाइम देते हैं, 3 मिनट टाइम ले लो, चलो, बट पिक्चर को ड्रॉ करो। इफ दैट इज नॉट बीइंग सीन क्लियरली, मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं पिक्चर को। ওটা ভুল দিয়েছিল, এটা ভুল দিয়েছিল, এটা মেন্সের কোয়েশ্চেন, বুঝছো, দুটোই ভুল দিয়েছে। সেমি মেজর সেমি মাইনর দুটোই সেমি মেজর আর সেমি মাইনরে দেবো, সেমি মাইনর, ওটা ভুল দিয়েছে, ওটাকে মেজর আর মাইনর পড়ো, ঠিক আছে ওটাকে। ও কোয়েশ্চেনে দু একটা ভুল থাকে এভরি ইয়ার, ওটাকে মাইন্ড করলে হবে না, কি করবে বলো। This was it. This is the major axis. This is the position of sun, that is a focus. इसको आधा आधा कर दो, तो ये हुआ सेमी माइनर, ये हुआ टोटल माइनर। माइनर इज AC। खुद से ड्रॉ करो, देखो इजी लगेगा। एंड द मेजर एक्सिस इज इधर B और इधर T। ये है मेजर एक्सिस। ठीक, नाउ व्हाट दे हैव गिवन कि अगर सन से C पोजीशन और A पोजीशन को ज्वाइन कर दूं ना, तो ये शेडेड एरिया जो है, ये एरिया शेडेड एरिया इज 1/4 द एरिया ऑफ द इलिप्स। ये पूरा इलिप्स का एरिया अगर A है ना, तो ये A/4 है, पूरा इलिप्स का एरिया A होने से, दिस इज A/4। ठीक है, दिस इज व्हाट एवर इज गिवन फ्रॉम दैट पिक्चर। अब बाकी का पढ़ के यू ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ। নিজে করতে চেষ্টা করো, দেখো ভালো লাগবে, নিজে ট্রাই করো, টেক সাম টাইম। এটা তো প্র্যাকটিস সেশন না, প্র্যাকটিস করো, নিজে ট্রাই করো। টাইম নাও একটু। আর অত টেনশনে কিছু নেই যে আমার হচ্ছে না, দেরি হচ্ছে, ওরা বলে দিচ্ছে, ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট। বি ইয়োরসেলফ, যে আমি চেষ্টা করছি, বাস দ্যাটস ইট, যতটা পারা যাচ্ছে আমি করব। আর তাতে আনন্দ নাও, দুঃখী হয়েও না। কিন্তু ট্রাই করো, বসে থেকো না, আমার এটাই বলার। হোক না হোক, পিকচারটা ড্র করো, লেখো এটা A/4, टोटल एरिया है। मेक योर ब्रेन थिंक कि ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स। टाइम का साथ रिलेशन, हाँ वी लर्न कि dA/dt कांस्टेंट होता है, ये सीखे थे। इसका माने क्या है, dA को A ले लिए, dt को t ले लिए, ये कांस्टेंट होता है। इसका माने क्या है, इसका माने area A1 time T1, and at some different moment it made area A2 in time T2, so ये रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, बस यही तो बोला है। दिस इज द इजी मीनिंग ऑफ द सेकेंड लॉ। देख रहे हो, साम बनाओगे सीखोगे। चलो अब करो, ये बॉक्सेस मेरे से, हाँ कतो कतो बोलो। T1 equals to
equal to 3t2. हाँ, রাইট আনসার। রিসেন্ট মেন্সের কোয়েশ্চেন এটা, একদম রাইট আনসার। দিস ইজ দ্য রাইট অপশন। ईशांत एक बार देख लेना ठीक ठाक टिक को मैं मैंने ऑप्शन को टिक दिया तो पिछला बार भूल से मैं बी को दे दिया था। देखो यही ऑप्शन है, इसको काम में लगाओ। देखो मैं बोल रहा हूं সবাই পারবে, এটাকে কাজে লাগাও। a1 by time taken t1 और a2 by time taken t2। तो read from the question whatever is given as t1, try to find that। t1 টা কি দেওয়া আছে ওটাকে বার করো। দেখো if t1 is the time taken for planet to go over path a b c, ए बी सी ये रास्ता जाने के लिए वो कितना टाइम ले लिया है t1। दिस इज t1, दिस इज t1। Yes, sir, option C, yes. अच्छा गुड, ठीक। चले ये अगर t1 है, ये तो ये अगर t1 है तो व्हाट हैज बीन द एरिया स्वेप्ट बाय, एक आइडिया बता दे रहा हूं सुनो। ये जो एरिया हम लोग लिखते हैं ना, ये दैट हैज टू बी स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है? द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सन। सन से डिस्टेंस, यही है रेडियस वेक्टर। यहाँ पे जब ये यहाँ पे आया प्लैनेट, ये है रेडियस वेक्टर। जब यहाँ पे आया, ये है रेडियस वेक्टर। यहाँ पे ऐसे करते करते यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। सो व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस वेक्टर? ऐसे विजुअलाइज करो, पिक्चर बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। चलो दिस हैज बीन द एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस बा रेडियस वेक्टर। ये एरिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया कितना हो जाएगा? यू कैन वेल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। यहाँ पे तो मैं इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे देखो दिस पिक्चर वाला पिक्चर गिवन यहाँ पे भाई, सी डी जो दिया हुआ है, ये सी और ए, सी ए, ये तो माइनर एक्सिस है ना, बीचों बीच। तो इसका इधर ये एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। और इसका पीछे वाला साइड का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। अब बोलो तो, इफ दिस इज a by 2, ये कितना दिया हुआ है? a by 4। तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा फिर? a b c, स्टार्टिंग फ्रॉम और लुकिंग एट दिस एरिया फ्रॉम s, ये एरिया कितना हो जाएगा? सिंपल है, ये हाफ ऑफ द एरिया जो कि a by 2 है, प्लस ये a by 4 ट्रायंगल वाला एरिया, ये होगा a1। दैट मीन्स in place of a1 write a plus a by 4, and in case of a2, a2 कितना हो जाएगा? a2 तो रिमेनिंग एरिया, तो रिमेनिंग एरिया तो ये बचा ना। ये रेड पार्ट बचा, देखो रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग कितना बचा? टोटल ए था, उसका आधा a by 2 था, उसमें से a by 4 ट्रायंगल वाला पार्ट माइनस कर दो, तो a by 2 माइनस a by 4 कितना होता है? a by 4। दैट मीन्स ये रेड कलर का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ कितना होगा? ये हाफ कितना होगा? a by 2, उससे ये ट्रायंगल माइनस कर दो, ये ट्रायंगल a by 4। a by 2 minus a by 4, that is a by 4। तो a2 को लिखना a by 4। तो इधर आ रहा है 5a by 4, सॉरी এটা a by 2 plus a by 4, a by 2 হবে এটা, a by 2, a plus a by 4 না, a by 2, a by 2 plus a by 4, এটা কত হচ্ছে তাহলে? 3
ए बाई 4 और ये पार्ट कितना हो गया, सिर्फ ए बाई 4. सो व्हाट इज द रेशियो, 3a/4 by T1 equals to a/4 by T2. That is T1 by T2, 3:1. That means T1 equals to 3T2. হলো নাহলে আমি আরেকবার বলবো, দেখো this area was a/4 given, this was given, and this is the middle part, so this is a/2 and the remaining is a/2. So this total area from the sun from S is given by a/4 plus a/2, a/4 plus a/2, and this remaining area a/2 minus a/4, that is a/4. ये so रेशियो इतना आ गया, ठीक है. तो ये सम था, ठीक है. चलो नेक्स्ट पार्ट. ये अभी नहीं कर पाओगे दिस पार्ट, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, पढ़ के देखो. এইটা এবার শেখাবো, पढ़ के देखो, अब सिखाएंगे थोड़ा. लेकिन उससे पहले देखता हूं और कुछ है कि नहीं जो बिना सीखे कर सकते हैं. ये अभी नहीं कर पाओगे. इसका माने ये नहीं कि मैं गैलेक्सी सिखाऊंगा, मिल्की वे, ये सब नहीं है. ये सीखेंगे कि थोड़ा सा मैथ सीखेंगे, फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है. उसको अभी छोड़ते हैं. चलो इसमें आ जाओ, तो इसको करो. अल गो देयर बैक. पहले नीट वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं. नीट मेंस खत्म. पहले यहां पे मैं पढ़ दे रहा हूं. बोला अ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन स्वीप्स एरिया A1 in 2 days, A2 in 3 days, A3 in 6 days. सब मजेदार है. जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस लर्निंग. ये सन है एंड ये है A1 एरिया. ये A1 एरिया 2 दिन में घूम लिया. अच्छा, ऑप्शन ए. अच्छा, लेट्स सी दैट. एंड दिस इज A2 एरिया. A2 area is swept in 3 days. 3 days. And this is area A3. না এটা কি ছিল, A3. হ্যাঁ, this is A3. तो A3 area swept in 6 days. Okay. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1, A2, A3. तो यू आर सेइंग व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन ए. Okay, so you are saying option A. Let us see that. A. अच्छा. So we can do it like this. Compare any two. dA by dt constant. उसका simplified माने हम लोग क्या निकाले? A1 by T1, A2 by T2. A1 by 2 days, A2 3 days. From this जो मिलेगा मिलेगा. Similarly, और क्या बोला? A2 A3, A2 3 days, A3 6 days. यहां से भी जो मिलेगा मिलेगा. तो यहां से क्या मिल रहा है? कम से कम कैंसिल तो कर लूं, थोड़ा हाथ का सुख हो जाएगा. तो 2A2 इक्वल्स टू A3. और यहां पे आ रहा है
2a2 এই যে मल्टीप्लाई 2a2 3a1। अच्छा तो 2a2 दोनों में ही आ रहा है, तो a3 इक्वल्स टू 2a2 इक्वल्स टू 3a1, बस आ गया। बहुत अच्छा सम था ये, सिंपल बट इंटरेस्टिंग। बट तुमको टेक्निक सीखना है कि कैसे करूं इसको। क्या टेक्निक? ये डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट, एरिया बाय टाइम इक्वल्स टू एरिया बाय टाइम। 2-4 सम प्रैक्टिस, याद हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसको करो अब, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा सम है एंड यू कैन वेल एक्सपेक्ट इन नीट। हाँ बोलो। যে প্রিভিয়াস সামটা ছিল এর আগে, ওটা আমরা গসেস থিওরেম দিয়ে করতে পারি? এর আগেরটা কোনটা? এইটা স্যার, কো- সিলিন্ড্রিক্যাল গ্যালাক্সি। ও যেটা ছেড়ে এলাম, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ গসেস থিওরেম দিয়ে করতে পারো। কেন করতে পারো? কেননা এখানে বলেছে ভেরি লং। যদি ভেরি লং না বলতো, এইটুকু কথা যদি না থাকতো, তাহলে আর গসেস থিওরেম হতো না। সেই জন্য আইডিয়াটা শিখতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক, কিন্তু ভেরি লং থাকাতে গসেস থিওরেম করতে পারি। ঠিক, তো দেখো এই সামটা, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कैविटी है, कैविटी। सम का हेडिंग ऐसे दे दो, कैविटी। और ठीक से ड्रॉ भी नहीं किया, पिक्चर जो है ना, यहां तक होना चाहिए सेंटर। दैट मीन्स सेंटर इज दिस वन, और ये r/2 जो है वो ऐसा होना चाहिए था। স্যার এটা কি অপশন এ হবে? ऑप्शन ए এ 7/8। মনে হচ্ছে তো ঠিক हो रही है, মনে হচ্ছে ইয়েস। অপশন এ কার এলো এত তাড়াতাড়ি? স্যার আমার আরে এইখানে দেখা যায় না আমারটাতে। কে বলছো? কে বললে? স্যার আমি অনুষ্মা বলছিলাম। ও অনুষ্কা বললে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। অপশন এ। দুটো ফোর্স মাইনাস করেছো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক। So the clue is, consider that the total sphere is here with no cavity. Cavity वैविटी नहीं है, पूरा का पूरा sphere है, and it is attracting mass small m. साइड में पॉइंट, हाँ ऐसे। ও আচ্ছা, আর বলবো না, ঠিক আছে। আর বলছি না, নাও করো এবার, ট্রাই করো। फिफ्टी% বলে দিয়েছি, কিন্তু ট্রাই করো। আনসারটা আনো। অনুসূয়া সামটা কি কমন ছিল? আনসারটা না অনেক তাড়াতাড়ি করলে। না স্যার ওই লাস্টের ক্যালকুলেশনটাই বাস বাকি ছিল, বাকি ওইটা তো লাস্ট দিন না তার আগের দিন আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখেছিলাম স্যার, ও ওই ডাউটের ক্লাসের পর। হুম 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 হুম, ঠিক, ঠিক আছে, করো করো। ট্রাই করো, একটু টাইম নাও, না হলে না হবে। ক্লাসটা রেকর্ডিং করছি, হ্যাঁ, যারা যদি কেউ মিস করো
এখন আরো এক দুটো ক্লাস রেকর্ডিং করব, যদি কেউ মিস করো একসঙ্গে ওটা ইউটিউবে তুলে রাখো, কারণ কারোর এক্সাম আগে হচ্ছে কারোর পরে হচ্ছে, এই ক্লাস কিন্তু থামিয়ে রাখবো না, বুঝেছো? 7/8, ইয়েস। এইবারে যারা 7/8 আনসারটা পেয়েছো, এবারে এর আবার লুক ব্যাক করো, কিভাবে এমনি সাম আমি ক্যালকুলেশনটাকে একটু ইজি বানাতে পারি, কি করলে একটু বেটার হতো, এরকম আরেকবার দেখো এটাকে, কারণ এমনি সাম আবার পাবে উইথ ক্যাভিটি ইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ক্লাস 12 এর স্টার্টিং এ, এগুলো আবার আসবে, সেই জন্য এটাতে টাইম দিচ্ছি, করো। তখন আরো শর্টকাট শেখাবো, তখন শর্টকাট শেখাবো আয়রোডোমের সামগুলো উইথ ক্যাভিটি, চার্জ বডিজ এবং বাঁ হাতে করবে। 12 তো আরো মজা লাগবে, দেখবে না, শেখাবো সব শর্টকাট। 11টা একটু টাইম দাও, কিন্তু এটা টাইম দাও। ক্যালকুলেশন যাদের হয়ে গেছে আরেকবার দেখো দেখি, বা যাদের হয়নি আরেকবার দেখো, একটু টাইম নাও, যে ওয়্যার অ্যাম আই গোয়িং রং, বা কনসেপ্ট বুঝতে পারছি না, ক্যাভিটি না থেকে কত ফোর্স, আর ক্যাভিটি টাকেই একটা মাস ধরে নাও, যাদের এখনো হয়নি। কনসিডার দিস ক্যাভিটি পার্ট টু বি আ মাস, মানে এইটাকেই ধরে নাও এটা একটা মাস, এইটা, এই মাসটা, ইফ देयर इज अ মাস লাইক দিস অফ সেম সাইজ, এই মাসটা, তাহলে व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन दिस मास एंड दिस मास, ये दोनों में फोर्स कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। और अगर ये जाली वाला मास है, दैट मींस दिस मेश शेप्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज अ शेडेड पार्ट एक्चुअली, कंप्लीट स्फीयर होता तो स्मॉल m का साथ फोर्स कितना होता, g m1 m2 by r स्क्वायर, सर बोलो हो जाए। मेरा आंसर ये आ रहा है 3/4। 3/4 आ रहा है, अच्छा ठीक है, देख रहा हूं। और कैविटी, कैविटी part अगर कंसीडर द कैविटी part to be another mass, तो what would have been the force between कैविटी वाला mass and small, तो अब कैविटी वाला part तो है नहीं, so subtract the force between the कैविटी वाला mass and small m from the total sphere and small m, that's it, इसी को कैलकुलेशन और चेक करो ईशांत, लेकिन आंसर मुझे लग रहा है 7/9 ही होगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करो, হ্যাঁ আর কেউ কনফার্ম করবে 7/9 টা, আর কারোর আসলে কনফার্ম করবে, দেখি কি আসে, মনে হচ্ছে ওইটাই হবে, 7/9 টাই হবে মনে হচ্ছে। ক্যালকুলেশন চেক করো। अदरवाइज देखो, as you are doing this, तो उसलिए मैं স্যার 7/9 এসছে। এসছে 7/9 এসছে, তাহলে ঠিক আছে, ওটাই आंसर মনে হচ্ছে 7/9। দেখো, if it was a complete sphere, complete, and there was a mass small, and this is a complete sphere of mass capital, the distance being, ये दिया हुआ डिस्टेंस देखो r, और इसका भी रेडियस है r, इक्वल नहीं लग रहा है, मान लो कि दोनों ही r है, रेडियस भी है डिस्टेंस भी है, ओके, तो दोनों में फोर्स कितना होगा, लेट अस कॉल इट F1, G mm by center to center distance whole square। सेकंड पार्ट को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि देखो, if this was the initial sphere, this was the center O, ये सेंटर O में ऐसा एक स्फीयर को काट लिया गया that has the diameter as r, समझ लो, ऐसे काटा गया, पिक्चर देखो,
बदमाशी करके वहां पे r/2 लिखा हुआ है एक साइड का। टोटल डायामीटर इसका कितना हो जाएगा, जितना बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस है। देखो रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर ये r, so diameter of the smaller sphere is r, so radius of the smaller sphere कितना हो जाएगा, r/2, that is the meaning. Now where students get stuck, 2D object में like 2D object like circle, disc ऐसा टाइप, वहां पे क्या होता है, रेडियस का साथ मास ऐसे रिलेटेड होता है। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रेडियस एंड मास ऐसे रिलेटेड होता है। क्यों, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यू, आर का क्यू। सो इफ आर दैट इज रेडियस इज हाफ, आधा कर दिए रेडियस को, देन मास विल बी क्या है, हाफ का क्यू। ये आइडिया पहले से होने से सम थोड़ा इजी बन जाता है। तो अगर टोटल बिगर स्फीयर का मास वी हैव कंसीडर्ड m, देखो ये, तो द पार्ट दैट वी हैव कट फ्रॉम दिस, उसका तो रेडियस इसका आधा रेडियस है, इसका r है, इसका कैविटी का रेडियस कितना, r/2। हम लोग सोच रहे हैं कि कैविटी में मास जितना है वैसा स्फीयर का मास कितना होगा, द स्फीयर ऑफ रेडियस r/2, इसका मास कितना होगा। तो इसका मास क्योंकि रेडियस हाफ है टोटल स्फीयर का, तो मास हो जाएगा 1/8 टाइम्स। तो न्यू सिचुएशन इज दिस कि r/2 रेडियस का अगर कोई मास है, r/2 रेडियस, तो उसका मास कितना होगा, m/8। देन व्हाट वुड बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मास स्मॉल है, वो देखो पिक्चर में दिया हुआ है, इधर तो r/2 और उधर ये डिस्टेंस दिया हुआ r, सो 3 r/2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन दीज टू, ये दोनों में फोर्स कितना लगेगा, F G M, M माने m/8 into small m divided by center to center distance whole square, 3/2r whole square। मैं बोलूं मेन दिक्कत वाला पार्ट ये है, ये पार्ट कि 3D ऑब्जेक्ट है, r/2 रेडियस अगर निकाल लेंगे तो उसमें कितना मास आ जाएगा, what would be the mass of the part that you have taken off from the original object, जिसका रेडियस हाफ है। तो r रेडियस का मास अगर m है, r/2 रेडियस का मास कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स। व्हाई इट बिकम्स, रिलेशन बता दिया। अच्छा, तो सिचुएशन ऐसा था, when no cavity, force this much, when there is a cavity, then see cavity का साथ small m का फोर्स कितना होता, let us call it F2, this much, no calculation done, सिर्फ मैं F2 लिख दिया। तो अगर ऐसा है तो जब ये सिचुएशन है कि ये पार्ट है और कैविटी नहीं है, then what would be the force between these two, these two माने a point mass and a mass with a cavity। तो इसको हम लोग ऐसे सोचें कि this force would be between a solid mass with no cavity and small m, that is capital M small m, इससे subtract कर देंगे किसको, कैविटी वाला पार्ट, ओनली कैविटी वाला पार्ट, ऐसे दिखा
कैविटी वाला पार्ट और स्मॉल, इसमें कितना फोर्स होगा? तो यहां पे फोर्स हो रहा था F1 और यहां पे फोर्स हो रहा था F2. Then the force here would be solid का साथ force minus cavity का साथ force. That is the answer would be F given by F1 minus F2. F1 minus F2 जब करेंगे, नोटिस करके देखो, G M M by R square can be taken common. इसको कॉमन ले सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिखा, कैन बी टेकन कॉमन. एंड देन F1 में और क्या था एक्स्ट्रा? 4R स्क्वायर आ रहा था, तो इसका नीचे होगा 1/4 माइनस F2 में क्या एक्स्ट्रा आ रहा था? G mm by R स्क्वायर अगर ले लेंगे, F2 में क्या बच जाएगा? 1/8 और 3/2 का होल स्क्वायर नीचे. दैट मीन्स 8 और 3/2 का होल स्क्वायर नीचे बचेगा. दिस शुड बी द आंसर. तो यहां पे क्या पूछा है? रेशियो पूछा है ना? रेशियो पूछा है. देखिए क्वेश्चन है की जिज्ञेस करो, और रेशियो पूछा है F डैश बाई F. माने तो समझ में आ गया, तब तो और इजी हो जाएगा. ये निकालने की भी जरूरत नहीं. कैसे? रेशियो F डैश माने এইটাকে বলছে, this force is now F dash with this cavity divided by F. F माने F1 को बोल रहा है कि पहले जो फोर्स था जब सॉलिड था, ये बोल रहा है. तो F डैश माना तो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय F1. इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस F2 by F1. Whenever you get a chance of finding a ratio, always apply these techniques. It will not only shorten your time but also calculation mistake होने का चांस कम है. 1 माइनस, अब F2 by F1. F2 में क्या देखे थे? अभी कर रहे थे हम लोग. F2 में, अरे बार पीछे टच हो जाता है. F2 में देखे थे ये आ रहा था 1/8 और 3/2 का होल स्क्वायर नीचे. तो F2 में था 1/8 और 3/2 का होल स्क्वायर. और F1 में क्या था? F1 में कुछ था ही नहीं. F1 में तो GMM by R स्क्वायर ही था. तो ये होगा आंसर. तो कत আসছে গো? দেখি F1 আর F2 কোনটা জিজ্ঞেস করেছিল? ঠিক আছে. F1 টা 2R এর হোল স্কয়ার ছিল, তাহলে F1 টা হবে 2R স্কয়ার. এটা দেখো কি হচ্ছে. আসছে না 7/9. 7/9 আসছে না? কত অপশন কত ছিল? হ্যাঁ 7/9. এই যে 2 স্কয়ার আর 8 ক্যান্সেল হবে. 2 স্কয়ারটা বুঝলে তো? ব্যাটারিটা অন করতে ভুলে গেছিলাম. So this is the answer, cavity वाला. नेक्स्ट पार्ट এটা করো. এইটা এক টাইপের সাম আসে, আর টাইপ অফ সাম.
two identical particles of mass 1 kg each go round a circle of radius r under the action of mutual gravitation. The angular speed of each particle is. The angular speed of each particle is. মানে suppose this is a particle. ও identical বলেছে. Suppose m. This is also m. They are moving in a circular path due to mutual gravitational attraction. इसका क्या माने है? म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन माने कि ये उसको टानेगा, वो इसको टानेगा, ऐसे करके टानते टानते दे आर रोटेटिंग. इसको बोला जाता है बाइनरी स्टार सिस्टम. इट इज अ सिस्टम. आईआईटी में बहुत कॉमन है ये टॉपिक, बाकी मेंस और नीट में भी आ सकता है. इसमें बाइनरी सिस्टम का कुछ दिया नहीं. यहाँ पे नॉर्मल है. टू मासेस ऐसे रोटेट कर रहा है, रेडियस आर और मास 1 kg. वेरी कॉमन सम है. इसका वेलोसिटी भी, इसका भी वेलोसिटी भी. एचसी वर्मा में भी ऐसा सम मिलेगा. तो भी नहीं दिया है, ओमेगा दिया हुआ है. अगर बोलो ना भी होता है स्पीड, तो फॉर एनी वन मास बाहर का तरफ फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर बाय आर. फॉर दिस मास कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस मास. इसका ऊपर बाहर का तरफ mv स्क्वायर बाय आर, एंड दिस मास इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अदर मास टुवर्ड्स द सेंटर. ये फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी मास वी कैन से mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? g m1 m2 माने mm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर. फ्रॉम दिस लेट अस फाइंड. क्या फाइंड करो? उसी वेलोसिटी निकाल सकते इससे. तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है? एक r तो कट जाएगी, gm बाई 4r. ये हो गया वेलोसिटी. नाउ डू यू रिमेंबर हाउ वी फाउंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट? थियोरी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल बनाना. टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट याद करो. ग्रेविटेशन में वी डिड अ थियोरी दैट प्रूव दैट टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट. तो वो कैसे डिराइव किए थे टाइम पीरियड? वी डिराइव वेलोसिटी फर्स्ट. यही फॉर्मूला किए थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. वो दोनों को इक्वल करके, यही था फर्स्ट लाइन. वी फाउंड v, देन टाइम पीरियड इज गिवन बाय लाइक दिस. ऑलवेज बाद में भी टाइम पीरियड निकालोगे, ये करना. कैसे भाई? s इज इक्वल टू vt होता है, तो t इक्वल्स टू क्या होता है? s बाई v. अब समझो कि अगर सर्कुलर पाथ है तो s कितना हो जाएगा? 2 पाई r और वेलोसिटी v. बस वही लिखा हूं मैं, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं. 2 पाई r बाई v. 2 पाई r डिवाइडेड बाय v का वैल्यू पुट कर दो. कितना? रूट ओवर gm कौन सा m था? कैपिटल. डिवाइडेड बाय 4r. तो 4r को ऊपर लिख दे रहा हूं. ओ मास तो 1 kg, रेडियस आ रहा है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसका क्या पूछा था? ओ एंगुलर स्पीड पूछा था. तब तो एक ही लाइन में निकल जाता. एंगुलर स्पीड. हाँ ताले तो, हाँ ताले एक लाइने बेरिए देखबे.
ये ज्यादातर देता है लीनियर स्पीड, दैट्स व्हाई वी डिड लीनियर स्पीड। अगर ये एंगुलर स्पीड देता है भाई एम वी स्क्वायर बाय आर को मैं ऐसे लिखूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर जी एम एम बाय बस हो गया और क्या निकल गया। तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ जी एम बाई 4 आर क्यूब आर है, आर स्क्वायर और ये आर, जी एम बाई 4 आर क्यूब, 4 का रूट ओवर। তাহলে তো অপশন ও এম তো 1 দেওয়া আছে, এম 1, এম को 1 बैठा दो, তাহলে ওমেগা ইকুয়ালস টু रूट ओवर ऑफ जी 4 आर क्यूब, तो मैंने 4 का रूट ओवर 2 जी बाई आर क्यूब। ऑप्शन सी আসছে না, ऑप्शन सी यस ए आर हाफ जी बाई आर क्यूब। ये मैं किस लिए किया, लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट है, क्वेश्चन जैसा है वैसा। ये पार्ट में किस लिए किया, ये पार्ट इसलिए किया जनरली सम लीनियर स्पीड से आता है, इस बार देख रहा हूं कि ओमेगा से दिया था तो और इजी हो गया। एम वी स्क्वायर बाय आर ना लेके यहां पे क्या किए, एम ओमेगा स्क्वायर आर किए, एम ओमेगा स्क्वायर आर। बाकी ये कर सकते हो, ये भी एक पी वाई क्यू है। अब कौन सा ईयर याद नहीं आ रहा, ये बनाओ तो खुद से। 4 equal masses are placed so that माना at the 4 vertices of a square of each side A। अब ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन, ये टर्म को लिख के रखो साइड में, म्यूचुअल फंड, फंड बोलिए, म्यूचुअल फंड मत लिखो, म्यूचुअल ग्रेविटेशन के लिए घूम रहा है। म्यूचुअल ग्रेविटेशन का माने ही है इक्विलिब्रियम में घूमेगा, घूमते घूमते डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा। क्लास 10 का एक चैप्टर था, याद आ रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको अप्लाई करना कि घूमते घूमते इक्विलिब्रियम में है, माने इक्विलिब्रियम माने कि एम वी स्क्वायर बाय आर, आर माने रेडियस, या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू the net force acting in opposite direction। यह है टेक्निक। एचसी वर्मा में यही साम है, ट्रायंगल देके इक्विलैटरल। ये देख रहे हो मेंस में आया हुआ है कि दो ऑपोजिट साइड में है, दो मासेस। एचसी वर्मा में 3 मासेस, मैं करने दिया 4 मासेस, आइडिया एक ही है, तो अप्लाई दैट आइडिया। ईच साइड ए 4 मासेस प्लेस्ड, ठीक है। फाइंड, इसमें निकालना क्या है, निकालना है लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच मास। जैसे कि ये सर्कल का टेंजेंट जो होगा ये होगा इसका लीनियर वेलोसिटी, ऐसे घूमेगी, ऑल द मासेस विल मूव लाइक दिस, ऐसे এমনি করে ঘুরবে এরা। তো কনসিডার অল দ্য মাসেস আর সেম স্পিড ভি, তাহলে বাইরের দিকে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স হবে, সেই ফোর্সটা কত হবে, এম ভি স্কোয়ার বাই আর, সেটা ইকুয়ালস টু বাকি আরো যা যা ফোর্স আছে তাদের রেজাল্টেন্ট। আর কি ফোর্স থাকবে, ইফ দ্য চ্যাপ্টার ইজ গ্র্যাভিটি তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন, আর যদি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স হয় ক্লাস 12 তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, দ্যাটস ইট। ট্রাই করো এটা। কোশ্চেনটা বুঝেছো, 4 equal masses placed at 4 vertices of a square of each side A are moving in a circular path due to mutual gravitational attraction. Find their linear speed. बस भी बार करो, ट्राई करो।
বাট একটা জিনিস বুঝছি যে ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভেক্টরস তাহলে এটা ইজি হবে, ইট উড বি ইজিয়ার ফর ইউ টু রাইট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন আ সিঙ্গল লাইন, এক লাইনে লিখতে পারবে, ওইটা ভাবো, ভেক্টরের ফর্মে ভাবো। হ্যাঁ, ভেক্টর মানে আমি বলতে চাইছি ডাইরেকশনটাকে কনসিডার করো, ডাইরেকশন, ওটা ইম্পর্টেন্ট। দেখো আরও এক দুটো নিট মেন্স লেভেলের সামস আছে, স্পেশালি নিট, তারপরে উইল বি মুভিং টু আইআইটি লেভেল ফর 30 মিনিটস, ব্যাস, বেশিক্ষণ পড়াবো না কারণ তোমাদের এক্সাম আসছে। তার মধ্যে দোজ হু আর ট্রাই করো, এগুলোর ফল ঠিক পাবে। যারা অন্য কারণে ট্রাই করছো না, তারা যে খুব বদমাইশি করে ট্রাই করছে না তা না, মেবি দে নিড আ লিটল হেল্প, তো ওইটুকু আমি শুধু বলে দিচ্ছি। বাকি দোজ হু আর ট্রাইং বাই দেমসেলস ট্রাই করো, যাদের একটু হেল্প লাগবে আমি তাদের জন্য বলছি। কনसिडर एनी वन मास आउट ऑफ द 4, 5, 6, 3, 2 जो भी दिया कोई एक मास को सोचो। तो लेट अस कंसीडर, কোনটা ধরো, ধরো এইটাকে ধরছি, दिस मास। अब हो क्या रहा है कि एज दीज आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर को लोकेट करो। सेंटर कौन होगा, डायगोनल का क्रॉस इंटरसेक्शन, मान लो ये O है, तो ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो अगर सर्कुलर पाथ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय वो रेडियस। तो बाहर क्यों नहीं जा रहा? हाँ कौन, gm বাই রুট টু এ হতেই পারে, হতেই পারে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমার √gm/2 √2a আছে। রুট ওভার জিএম বাই টু রুট টু এ এমনি বলছো, হ্যাঁ স্যার। সেটাও হতে পারে। স্যার আমার শুধু √2 আসছে। আচ্ছা, তার মানে টু রুট টু না রুট টু, এইটাই হ্যাঁ স্যার। এটাই ডাউট লাগছে তাই তো, ঠিক আছে, লেট আস সি দ্যাট। করছি দাঁড়াও, তার আগে না আমি এক্সপ্লেনেশন পার্টটা করে নিই, যে mv স্কোয়ার বাই আর ইন অপোজিট ডাইরেকশন, ওকে, বাট হোয়াট, তাহলে ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে না কেন? হোয়াই ইজন্ট দ্য মাস মুভিং অ্যাওয়ে? বিকজ সাম আদার ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং ইট টু পুল ইট টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। হোয়াট আর দোজ ফোর্সেস? But small m on this side will attract the mass in this direction, F1. Small m here will attract the mass in this direction, F2. And another small m here, बहुत दूर है, that will attract the mass in this direction, F3. So these are the three forces. ये तीन फोर्सेस है जो कि ये मास के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब इसको मैं अगर साइड में ड्रॉ कर दूं ऐसे, दिस बॉडी इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस लाइक दिस। I want to remind you one thing, कि if there are two forces which are equal to each other, what would be the force acting between this small m and this small m? G mm by r square. R means how much? R means A. That is G m square by A. So F1 भी तो उतना ही होगा जितना F2 है. F1 will also be G m square by A square. First idea. In this figure, F2 and F1 will be equal.
सेकेंड आइडिया वेक्टर वाला जो बोल रहा था, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स देन देयर रिजल्टेंट एक्ट्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री, क्यों स्क्वायर है, एंगल 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट ऑफ सिर्फ F1 F2 दैट इज, मैं ऐसे लिख रहा हूं R1 2 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है दैट विल एक्ट एट एन एंगल 45 डिग्री। तो इससे क्या लाभ मिलेगा भाई, 45 डिग्री में और एक आदमी है, कौन, द डायगोनल इटसेल्फ along which the third force is acting F3। तो मैंने ये दोनों का बदले में R2 एक्ट कर रहा है, R12, और F3 भी उसी डायरेक्शन में है। अब तो एडवांटेज मिल गया ना वेक्टर का, क्या, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज ओनली एडेड डायरेक्टली। सो टोटल फोर्स ऑन मास स्मॉल m, इसका ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, देखो भाई, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना, G m स्क्वायर A स्क्वायर √2। √2 कहां से आ गया, मैं बोला था इफ देयर आर टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय √2 टाइम्स, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा दो फोर्स अगर 90 डिग्री में एक्ट करता, पहले ही बोला था, और 12 में फिर से बोलूंगा, बहुत काम आएगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, √2 टाइम्स, ये हो गया। और उसका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द थर्ड फोर्स। तो थर्ड फोर्स मिला के रिजल्टेंट कितना होगा टोटल, डायरेक्ट ऐड, क्यों, डायरेक्शन सेम ही है, प्लस F3। अब F3 कितना होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ F3। तो उसलिए F3 को मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे F3 इक्वल्स टू G क्या होगा, m माने m स्क्वायर, ये तो सेम ही होगा, बाय डिस्टेंस स्क्वायर जो होगा, ये तो टोटल डायगोनल का डिस्टेंस है। तो डायगोनल का डिस्टेंस तो A√2 होता है, उसका स्क्वायर, ये होगा F3। ये दोनों मासेस का फोर्स Gmm बाई A√2 का होल स्क्वायर। तो लिख रहा हूं Gm स्क्वायर बाई A√2 का होल स्क्वायर मीन्स 2A स्क्वायर। दिस वुड बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, किधर, इनवर्ड। ये किधर हुआ, इनवर्ड माने टुवर्ड्स द सेंटर, इनवर्ड्स इतना फोर्स। और आउटवर्ड कौन सा फोर्स हुआ, मैं तो बोला था ये है टेक्निक हम लोगों का, mv स्क्वायर ऑलवेज आउटवर्ड होगा, ये इक्वल्स टू इनवर्ड फोर्स। वो कितना हुआ, इतना, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेट अस फाइंड v। ये दोनों को इक्वल करते हैं, चलो इसको हटाता हूं। तो लेट मी इक्वेट देम, mv स्क्वायर बाय r का बदले में लिख दो a बाय √2। r कितना होता है, ये r माने रेडियस ऑफ द सर्कल, आधा डायगोनल होगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल होगा हाफ द डायगोनल, a बाय √2। तो mv स्क्वायर बाय a बाय √2 माना r इक्वल्स टू टोटल फोर्स। ये टोटल फोर्स में से Gm स्क्वायर बाय स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए, Gm स्क्वायर बाय स्क्वायर बचा गया, फिर एक का √2 बचा। a বাই √2টা হচ্ছে ডায়াগোনালের হাফটা, আমি দেখাচ্ছি, এটা যদি একটা সার্কেল হয় আর এটা যদি একটা স্কোয়ার হয়, তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত হবে স্কোয়ারের, a√2 হলো। তাহলে a√2 যদি ওই ডিসটেন্সটা হয়, তাহলে ওর রেডিয়াসটা কত হবে, এইটা তার হাফ, কত হয়, এগুলো ডাইরেক্ট মনে রাখো, হ্যাঁ খুব কাজে লাগবে। তো mv स्क्वायर बाय r माने a बाय √2 इक्वल्स टू gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लिया मैं, ये दोनों में gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलो बचा √2 प्लस हाफ,
ये बचा, बस दिस इज द इक्वेशन। एक m को काटो और एक a भी कैंसिल होगा। सो फ्रॉम दिस ये √2 ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, दैट मीन्स v इक्वल्स टू रूट अंडर g m √2a, और ऊपर में आएगा √2 प्लस हाफ ऊपर में। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा हो सकता है जी एम बाई ए, √2 से डिवाइड सबको, ये होगा भी का आंसर। ये अगर मैं बोल दिया कि अच्छा लेंथी है तो ना, नीट में नहीं आएगा। अरे बोर्ड एग्जाम में दे देगा, नीट तो दूर का बात है। द सिचुएशन लाइक नाउ ऐसा ही है, प्लीज डोंट टेक रिस्क। ये सब कुछ छोड़ते छोड़ते लास्ट में बचेगा नहीं कुछ नीट के लिए, सभी तो छोड़ के आ गए। नीट में सिंपल दिया, नाम लिखो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और 21 लाख स्टूडेंट एग्जाम देगा। তাহলে omni ডাক্তার হবে, the doctors who can be easily replaced by AI, বুঝেছো? সবই যদি মুখস্থ করে হয়ে যেত নিট। বলো স্যার আরেকবার একটু টোটাল ফোর্সটা বলবেন? কোনটা বলো? এই টোটাল ফোর্সটা? হ্যাঁ স্যার, ওই যে এই যে এইটা এটা তো নাকি এই জায়গাটা বলছো না এই জায়গাটা বলো তো, তাহলে আমি। না স্যার, ওই R12টাই বলছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, R12টা ঠিক আছে, ঠিক আছে বলছি। দেখো আচ্ছা, আমি ওটা এক্সপ্লেন করছি। তার আগে দোজ হু হ্যাভ ডান ইট অর আন্ডারস্টুড দিস, আর না হলে একসঙ্গেই করাবো, দাও একসঙ্গেই করাচ্ছি, গোয়িং টু দ্যাট। আমি আবার বলে দিই, দেখো ধরো এইদিকে একটা ভেক্টর আছে যার ভ্যালু হচ্ছে এফ, এইদিকে অ্যানাদার ভেক্টর ভ্যালু এফ, অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। তাহলে এদের রেজাল্টেন্ট কত হয়? আর ইকুয়ালস টু √ওভার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার 2ab, তারপর কি হয় কস থিটা। আরে তাহলে তো ছোট হয়ে গেল। তার মানে every time when we see that two vectors are at an angle of 90 degree, their resultant would be how much? √2 times. Idea 1. Idea 2. Idea 2, huh? বলো বলো বলো। এইটা এইটা তো এইটা তোমাদের আনসার ছিল, অনেক কাছাকাছি গেছিলে, ভেরি ক্লোজ, শুধু একটু চেঞ্জেস হলো। এইটা ভি ইকুয়ালস টু, বুঝছে? So that is why the resultant is √2 times of any one of the two forces which are equal in magnitude. এটা always হবে। And second thing, we know if two vectors are equal in magnitude, then their resultant will bisect the angle between them. এটা আমরা ভেক্টরে শিখেছিলাম, যে দুটো ভেক্টর ইকুয়াল ম্যাগনিটিউডের হয় তাহলে দেন their resultant bisects the angle between the two vectors. Okay, তাহলে R will act at an angle which is 45 degree from both the forces, but if we construct the square or rectangle square tha, তাহলে this 45 degree angle वाला तो कौन है? Diagonal है, और along that diagonal was acting another force.
दैट वाज द फोर्स बिटवीन दिस कॉर्नर मास एंड दिस कॉर्नर मास, उसका नाम क्या था, F3. सो आई टोल्ड यू दैट द टोटल फोर्स F would be given by third force, মানে force between these two corner mass plus the resultant of the forces acting or exerted by this mass and this mass on this. ये इसका ऊपर ये फोर्स दे रहा है, ये इसका ऊपर ये फोर्स दे रहा है, रिजल्टेंट R हो रहा है. तो टोटल फोर्स F on this mass will be the resultant of these two plus R. और कोई उपाय है ये रिजल्टेंट निकालने का? और भी उपाय है. कैसे? रिजॉल्विंग इनटू कंपोनेंट्स, वो भी कर सकते हो. तो एनीवे ये इजी है. तो F3 कितना था, GMM/R² की है, दैट इज GM²/A√2 का होल स्क्वायर F3 টা. আর F কত হচ্ছিল, F G M into M মানে M স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স তো A ছিল বাই A স্কোয়ার. সো টোটাল ফোর্স যখন অ্যাড করলাম দেন দ্য আনসার বিকাম দ্যাট. এনিওয়ে সো দিস ওয়াজ ইট. ওটা ছিল এক্সপ্লেনেশন পার্ট. নাও এই টাইপের একসঙ্গে করো তো. হ্যাঁ বলো, লাস্টেরটা, দিস ওয়ান না প্রিভিয়াস টু দিস? Okay, take. Now, do this. Two bodies of masses 8 kg are placed at vertices. पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, जस्ट थोड़ा सा चेंज करके इसको दिया है, मैंने नेचर सेम रहता है, सिर्फ प्रैक्टिस करो बस. Two bodies 8 kg masses each placed at the vertices A and B, equilateral triangle ABC. Third body of mass 2 kg placed at the centroid G of the triangle. Centroid मानो एंगल का जो बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करता है, वही मैंने दोज हु डोंट हैव मैथ्स उसके लिए बोले. जी मैं पहले वीडियो दिया था क्लास 11 शुरू करने से जस्ट पहले, वहां पे ये सारे डिटेल्स दिया हुआ था एंड आई आस्क्ड यू टू गो थ्रू देम. बाद में नहीं तो दिक्कत होगा. देख रहे हो तो? इफ यू हैव मिस देम गो थ्रू देम. 10-15 मिनट्स का वीडियोस है, क्लियर कर लो आइडिया. जिसका मैथ्स नहीं भी है वो भी क्लियर हो जाएगा, उसका भी क्लियर हो जाएगा. तो टू बॉडीज ऑफ मासेस ये दिया हुआ है, एबीसी ट्राइंगल है, एजी बीजी सीजी तीनों 1 मीटर इक्वल डिस्टेंस होता है. Where should a fourth body of mass 4 kg be placed so that the resultant force on the 2 kg body is 0? ये मास रखने से फोर्स कहां से आ जाता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. और देखो अभी जो वेक्टर का आइडिया सीखे उसी का फिर नेक्स्ट टाइप का एप्लीकेशन है. बोलो कौन? सर ऑप्शन बी. অপশন বি মনে হচ্ছে কারেক্ট আনসার. ভ্যালুটা দেখে মনে হচ্ছে ऑप्शन बी. जिसका हुआ नहीं एक बार ट्राई करो. মনে হচ্ছে কারেক্ট আনসার ভ্যালুটা. ভেরি গুড. কার এলো আনসারটা শুনি? सर আমার. আবার আমার এই ছেলে মেয়েগুলো सर इशिका. ভেরি গুড. দেখা যাক আগের বারেরটা রুট টুটা ভুলটা শুধরে নিলে তো. দেখো ভুল করাটা বড় কথা না. দেখো এই যে এইখান থেকে এই পার্টটা আছে, দিস পার্ট, जिसको टोटल फोर्स का भूल করেছিলাম. এই পার্টগুলো ওইগুলোকে রেকটিফাই করো ধীরে ধীরে. দেখো কনফিডেন্স বাড়বে. इफ यू मेक मिस्टेक्स दैट इज गुड थिंग. मिस्टेक कौन करता है? जो ट्राई करता है. मिस्टेक किसका नहीं होता है? हु हैज नेवर ट्राइड. কার হয় না মিস্টেক? সবাইকার হবে. চেষ্টা করো. চলো ভালো বরং মিস্টেকগুলো এখানে হয়ে যাক, ফাইনাল এক্সামে করো না, মানে কমে যাবে আর কি. মিস্টেক তাও হবে দু একটা. মেক রুমস ফর দ্যাট, ডোন্ট ওয়ারি. চলো
ट्राई करो आगे ना. आई वुड सजेस्ट यू ड्रॉ दिस. Yes, sir. Answer is B. आ गया ना √2 वाला तो. चलो फिर ऐसा करते हैं. थ्री मासेस ड्रॉ कर लेते. आइडेंटिकल है ना. आइडेंटिकल नहीं है. आइडेंटिकल नहीं है. वो आइडेंटिकल वाला आया था एक बार एग्जाम में. इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया. बाकी नेचर इज सेम. क्या क्या दिया. 2 masses 8 kg are placed at vertices A and B. मैं इसको A ले लिया, इसको B ले लिया. ये 8 kg करके है. ठीक है. और ये क्या होता है कि यहां पे अगर G ले लिया. क्लास 11 शुरू में बहुत बार बताया था ये वैल्यूज याद रखना है. वो वीडियो में 11 शुरू से पहले जो वीडियो दिया था उसमें दिखा दिया था कि हाउ दिस वैल्यूज आर देयर एंड यू नीड टू रिमेंबर देम. तो एनीवे अभी ऐसा है कि मैथ्स भी सीख गए हो बहुत, तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए. यहां पे एक मास रख दिया. कितना. 2 kg at point G. तो 2 kg का ऊपर A इतना फोर्स देगा. कितना. Fa. B will exert this force on 2 kg. कितना. Fb. First look for angle between vectors. बाद में वैल्यू. ये एंगल कितना होगा. मैं तीनों मिला के 3 एंगल बनाया है तो ऑब्वियसली 120 डिग्री करके होगा. ये भी मैं बोला था तुम लोगों को वेक्टर में, वो वीडियो में भी डाला हुआ था. 120 डिग्री एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स मत लिखना. 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. वैल्यू सेम है. अगर वैल्यू सेम है और एंगल 120 डिग्री है तो क्या होता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू एनी वन ऑफ देम. ए और बी अगर दो वेक्टर है और एंगल अगर 120 डिग्री है देन उसका रिजल्टेंट या तो ए का साथ इक्वल नहीं तो बी का साथ. दोनों इक्वल है. दैट मीन्स यहां पे एफ ए और एफ बी आर इक्वल. कैसे. देखो पिक्चर से. एफ ए और एफ बी. अगर मैं ये वैल्यू को आर ले लू. आर जैसे पहले लिया था, रेडियस हुआ था ना, वैसे आर ले लिया, या तो कुछ भी ले सकते हो. तो इन टर्म्स ऑफ आर ये वैल्यूज कितना होगा. जी m1 m2. ये m1 8 kg है. m2 कितना है 2. जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. तो दोनों का ही तो वो होगा. एफ बी विल ऑल्सो बी दिस मच और एफ ए विल ऑल्सो बी दिस मच. ये दोनों का फोर्स, ये दोनों का फोर्स सेम. दैट मीन्स व्हाट वी गेट. वी गेट 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. हाँ ये मिल गया. और क्या मिला कि दोनों का बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री. तो ये भी मिल गया.
तो क्या होगा कि ऑब्वियसली रिजल्टेंट हैज टू बी इक्वल टू एनी वन ऑफ देम। तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, मैं दूसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूं इधर। दिस वुड बी द रिजल्टेंट आर, किसका किसका, ए और बी का। और तो और आर का डायरेक्शन किधर होगा, मैं बोला था कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, दोनों का बीचों बीच होगा, एग्जैक्टली मिडवे। दैट मीन्स ये टोटल 120 डिग्री है, तो इधर भी 60 डिग्री उधर भी 60 डिग्री। दैट मीन्स ये प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग ही होगा, नीचे बस। तो आर का ये वैल्यू कितना होगा, और किसी एक का इक्वल कितना, 16g बाई आर स्क्वायर। ये तो एफ ए एफ बी जो भी है इक्वल टू आर हो जाएगा, फॉलोइंग दिस आइडिया। बोला है कि ऑपोजिट में कितना मास, ना क्या पूछा है, 4 kg मास गिवन, 4 kg मास इज प्लेस्ड। बोला है व्हेयर शुड इट बी प्लेस्ड, व्हेयर, फोर्थ मास को कहां रखने से उसका ऊपर इतना ही फोर्स आ जाएगा। भाई कहीं पे भी रख देंगे ना, x डिस्टेंस में रखने से मान लेते हैं कि वी हैव प्लेस्ड अनदर मास एट अ डिस्टेंस x, कितना केजी का, 4 kg। x डिस्टेंस में बोला है 4 kg मास को कितना डिस्टेंस में रखोगे, x डिस्टेंस। सो व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन दिस 2 kg मास प्लेस्ड एट g एंड 4 kg मास, ये दोनों में फोर्स कितना होगा, ये तो इधर टानेगा इसको, ये फोर्स को मैं बोल रहा हूं F इक्वल्स टू G mm 4 into 2 gm1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो पूछा क्या है, नेट फोर्स ऑन द 2 kg मास 0 होना है। दैट मींस इसका जितना वैल्यू होगा ये रिजल्टेंट का भी उतना ही वैल्यू होगा। तो 16g बाय आर स्क्वायर, इसको इक्वल बना दो इसका साथ, कितना 8g बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये तो 2, तो x r बाई रूट 2। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं दिस इज योर अर्ली स्टेज, उसलिए ठीक है शाम को बनाए, जब फाइनल स्टेज आएगा ना, बिफोर यू गो फॉर मेंस एंड नीट, करना प्रैक्टिस। पर चेकिंग के टाइम विजुअली थोड़ा सोच के करोगे तो बिना पेन कॉपी का ही कर सकते हो। हाउ, मैं बता रहा हूं, देखो फॉलो करो मुझे, जो आइडिया अभी तक सिखाया या तो ऑलरेडी यू न्यू, उसी को अप्लाई करो। ये दो मासेस है, जी में एक मास है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छा 120 डिग्री एंगल, वैल्यू भी सेम होगा क्या, नो, डिस्टेंसेस आर सेम, मासेस आर आल्सो सेम, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट मिडवे, और वैल्यू किसी एक का इक्वल, आइडिया आ गया। उसी का इक्वल फोर्स अगर इसका ऊपर आ गया, अनदर फोर्थ मास एक्सर्ट्स दैट फोर्स, तभी 0 होगा नेट फोर्स। अब हम लोगों का काम है कि ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, कितना होगा डाउनवर्ड्स, किसी एक का इक्वल, किसी एक का वैल्यू कितना होगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को, डिस्टेंस को r मान लो अभी फिलहाल, ठीक है, इक्वल्स टू, चलो वही रिजल्टेंट हुआ, इक्वल्स टू ये फोर्स, ये फोर्स में जी एम एम बाय आर स्क्वायर। सिर्फ क्या किया देखो, यहां पे क्या किया कि मास ये दोनों का हाफ है, ये 4 kg, उसलिए तब मैं बोला √2 देख के लग रहा है वही होगा। मास अगर हाफ हो गया तो डिस्टेंस स्क्वायर है, तो मास हाफ, डिस्टेंस कितना होगा 1/√2 टाइम्स। लेकिन यहां पे दिया एट अ पॉइंट ऑन P ऑन द लाइन CG सच दैट PG इक्वल्स टू, ये इसको P बोला है, दे हैव सेट दिस पॉइंट टू बी P, PG इक्वल्स टू, ये जो C पॉइंट था ये CG का 1/√2,
they have not asked you what would be CG. अगर पूछता तो देखते फिर। बोला है CG का कितना फ्रैक्शन है ये, तो CG को ही हम लोग R ले लिए क्योंकि CG इक्वल्स टू BG इक्वल्स टू AG दिया हुआ था, एंड वी कंसिडर्ड दैट टू बी R। एनीवे, इसको देखो, ये मजेदार है, ये सब मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये AMU का क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता था पहले जब अलग से एग्जाम होता था। माने एम्स का नेक्स्ट लेवल ही ये था, या तो एट पार था एम्स का, AMU का। लेकिन ये टफ नहीं है, इजी है। यू हैव टू जस्ट कंपेयर 4 केसेस। टेक सम टाइम। आई वुड अगेन टेल यू कि ये पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर मिला हाथ में, फिर भी एग्जाम हॉल में क्या करना कि ड्रॉ करके कहीं पे करने का कोशिश करना। এখন एटलीस्ट फॉर प्रैक्टिस यू ड्रॉ दिस, ड्रॉ करो, देन थिंक अबाउट इट। देखना बहुत जल्दी होगा। खास करके उसको ड्रॉ करो जो दिक्कत पैदा कर रहा है, যেটা দেখছো একটু ডিস্টার্বিং, ওইটাকে ড্র করো, কিন্তু ট্রাই করো। বা সেটাই লাস্ট, এরপরে একটু IIT লেভেলে যেতে হবে। অপশন সি সবচেয়ে কম। हाँ, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। এই যে লিস্ট টু গ্রেটেস্ট, पहले रहेगा लिस्ट, सबसे कम फोर्स ऑन कैपिटल M, मिनिमम फोर्स ऑन कैपिटल M वो होगा फर्स्ट में रहना चाहिए। व्हिच पिक्चर, ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। Sir, option B. ऑप्शन बी বলছো, গ্রেটেস্ট বলছো পিকচার নাম্বার 4 এ, আর লিস্ট পিকচার নাম্বার 1। Sir, option D. অপশন ডি বলছো, Sir, B. মানে অপশন বি, বি। আচ্ছা, বি আর ডি তে কনফিউশন হচ্ছে না, আনসারটা আমার মনে নেই। ঠিক আছে, সবাই ট্রাই করুক। তোমরা আর একটু ভাবো, অপশনটা যেহেতু ডিফারেন্ট আসছে না, অপশনটা ডিফারেন্ট আসছে, তো গিভ ইট আ সেকেন্ড থট, বা অন্যভাবে আরেকবার ভাবো, আবার ফ্রেশ করে একবার ভাবো। যেহেতু ডিফারেন্ট আসছে, সেম আসছে না সবাইকার, তার মানে ডিফারেন্ট স্টুডেন্টস আর অ্যাপ্লাইং ডিফারেন্ট লজিক। অপশন বি আসছে। ঠিক আছে, দেখা যাক। ফার্স্ট হচ্ছে, দেখছো তো এগুলো মেনলি গ্র্যাভিটেশনের সাম নয়, কিন্তু এগুলো PYQ। এটা তো 2017 সাল থেকে নিট শুরু হয়েছে, তার আগেই এটা 2014-15 AMU क्वेश्चन। तो माने क्वेश्चन ग्रेविटेशन का वो तो नहीं। B. हाँ, कौन सा लग रहा है? बी। Sir, B. अच्छा,
अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो ये ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, शुरू में कौन आएगा, माने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट फोर्स कब आएगा। तो लीस्ट फोर्स तब आता है when a body is acted upon by two equal amount of force in opposite direction। पहले तो यहां पे नेट फोर्स ऑन m कितना हो जाएगा, 0। ये होगा लीस्ट फोर्स। लीस्ट फोर्स कौन सा होगा, जहां पे m बीच में है, ये होगा। तो पिक्चर 2 विल शो अस द वैल्यू ऑफ लीस्ट फोर्स। চেঞ্জ করছো এখন, আচ্ছা ঠিক আছে, বিতে আসছো, বি এর ভোট বাড়ছে ভাই, ঠিক আছে, लेट्स सी दिस। तो लिस्ट फोर्स होगा इसमें। अच्छा, उसका बाद लेट अस गो विथ अदर फिगर्स। ये जो है फर्स्ट फिगर, लेट अस सी दैट फर्स्ट फिगरটা देखिए। फर्स्ट फिगर है कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम, and here is small m at a distance d, here is small m at a distance d plus d 2d. So net force on capital M, that is net pull in this direction, would be given by g mm by d square, और एक बार होगा g m small m, वो वाला m divided by उसका distance 2d whole square। जी एम एम बाई डी स्क्वायर अगर छोड़ भी देंगे, মানে কমন, এটা যদি কমন নাও, 1 প্লাস 1/4, দ্যাট ইজ 5/4। শুধু নাম্বারটাকে দেখো, লুক এট দ্য নাম্বার, জি এম এম बाई डी स्क्वायर 5/4। ये हुआ फिगर 1, तो नंबर इज 5/4। नाउ फिगर 3, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होता है, अभी सीखे हम लोग, फोर्स वुड बी √2 टाइम्स ऑफ एनी वन फोर्स इफ द फोर्सेस आर इक्वल। तो एनी वन फोर्स को कितना लिखेंगे, जी एम एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, उसका √2 टाइम्स। दैट मीन्स फैक्टर पार्ट आया √2। तो ये जो √2 है 1.41 है, ये 5/4 है, 5/4 मीन्स 1.25। ये 1.41, तो मैंने ये ज्यादा है, ऑप्शन 3। तब तो ऐसा होना चाहिए कि 2 पहले आएगा, लीस्ट वाला, ये फिगर 2 था, देन थोड़ा ज्यादा आया 1.25, दैट इज 1, 2 का बाद 1, फिर आ रहा है 3। सो इतना श्योर है 2-1 सीक्वेंस होना ही होना है। अब 2-1 से दो ऑप्शन है, देखो 2-1 से या तो बी नहीं तो सी। तो कंपटीशन अब किसका बीच में होगी, अब यहां पे है 3-4 ऑप्शन बी में, लास्ट दोनों, यहां पे 4-3, लास्ट दोनों में कंपटीशन हो गया। तो 3 और 4 को देखना है। तो 4 और 3 में कौन जीतेगा, माना फोर्स विल बी मोर इन पिक्चर नंबर 4 ना पिक्चर नंबर 3। वेक्टर का आइडिया, यस, राइट आंसर। लेस द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, लेस द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, मोर इज द रिजल्टेंट। क्यों, एंगल कम होते होते अगर 0 डिग्री हो गया तब तो रिजल्टेंट ए प्लस भी हो जाता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो लेस द एंगल मोर द फोर्स, और जितना एंगल बढ़ जाता है लेस इज द रिजल्टेंट। तो यहां पे देख रहा हूं कंपेयर टू 3 एंड 4, केस 4 में एंगल थोड़ा कम है देन 90 डिग्री। सो केस 4 में रिजल्टेंट वुड बी मोर। तो कंपेयर टू दिस एंड दिस, 4 case number 4 angle is not given but it is showing that it is less than 90 degree,
तो केस नंबर 4 में F would be, केस नंबर 4 में F would be more than 3. इतना श्योर है, क्यों? बिकॉज द एंगल इज लेस देन 3, सो द रिजल्टेंट विल बी मोर. तो 3 ज्यादा होगा, 4 ज्यादा होगा 3 से, तो हाईएस्ट तो 4 ही आ रहा है. यस, दोज हु आंसर्ड बी, यू गॉट इट राइट. 4 सबसे ज्यादा आ रहा है. पिक्चर नंबर 4 सबसे ज्यादा आ रहा है, और लिस्ट 2